بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين. أما بعد، يقول أفقر العباد إلى الله تعالى عز وجل محمد بن منير أحمد عفى الله عنه قال: حدثنا أستاذنا وشفيقنا ومحبنا ومحبوبنا ومخدومنا وسيدنا ومرشدنا ومولانا المفتي الأعظم المحدث الكبير والمفسر الجليل الشيخ حبيب الرحمن الدرخاستي قال: حدثنا شيخ الإسلام والمسلمين حافظ الحديث والقرآن محمد عبد الله الدرخاستي قال: حدثنا الشيخ المحدث الكبير غلام صديق الجامفوري قال حدثنا محمود الملة والدين الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي التحويل حدثنا فقيه العصر والمحدث الكبير المفتي الأعظم الشيخ حبيب الرحمن الدرخاستي قال: حدثنا الشيخ المحدث محمد إبراهيم التوسبي قال: حدثنا خاتم المحدثين أنور المحدثين الشيخ السيد محمد أنور الشاه الكاشميري قال: حدثنا محمود الملة والدين الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي التحويل حدثنا مخدوم العلماء والصلحاء المفتي الأعظم الشيخ مفتي حبيب الرحمن الدرخاستي قال: أجازني صاحب السجن الشيخ الهند الإعلاء كلمة الله الشيخ عزير قل قال: حدثنا الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال: حدثنا حجة الإسلام والمسلمين قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي وقطب الأقطاب الفقيه الأعظم الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي قال: حدثنا الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي قال: حدثنا حجة الإسلام والمسلمين آية من آيات الله الشاه ولي الله المحدث الدهلوي قال: حدثنا الشيخ أبو طاهر بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا الشيخ أبو المواهب محمد بن عبد القدوس
الحنفي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي قال حدثنا الشيخ زكريا بن محمد أبو يحيى الشافعي قال حدثنا الشيخ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر قال حدثنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي الشافعي قال حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا الشيخ السراج الحسين بن مبارك الحنفي قال حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى التحربي قال حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الشافعي قال حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الشافعي قال حدثنا إمام الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث شيخ الإسلام آية من آيات الله بركة العصر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم.
कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हक तो मेहमानों का था। रात तो लंबी है, लेकिन आज इतने अजीम शख्सियात तशरीफ फरमा हैं। खुसूसन मैं इसके लिए दिल से कभी मांगता रहता था कि कभी अपने मुर्शिद को सुनाऊं। हक तो यही बनता था कि आज उनका हक था, वही पढ़ाते, लेकिन इस जुर्रत पर भी माफी मांगता हूं। कुछ खानदानों में कुछ नेक मामूलात ऐसे होते हैं कि बंदा बेबस हो जाता है। हमारे ख़ानदान के मामूलात में से ये रहा है कि जो सारा साल बुखारी शरीफ पढ़ावे, आखिरी वही हदीस पढ़ावे। बस बहरहाल मैं समझता हूँ मेरे मुर्शिद मोहतरम की दुआएं मेरे साथ हैं, और हज़रत अक़दस हज़रत मियाँ मसूद अहमद साहब दामत बरकातुहुम मलालिया भी मुसलसल दुआओं में मशगूल हैं। और फिर जिन शख्सियतों से हम अपना ताल्लुक़ जोड़े रखते हैं, उन्हीं में से अमीर शरीयत हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह का नाम नामी इसमें गिरामी है। ये सारी निस्बतें तशरीफ़ फरमा हैं। हिम्मत नहीं हो रही, निहायत ही इख्तिसार से एक दो बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, और शेख से यही गुजारिश है कि दुआ फरमाएं, दो चार लफ्ज़ मैं कह सकूँ। कभी कभी मेरी तबीयत ऐसे हो जाती है, हमारे दोस्तों को पता है, हज़रत रब्बानी साहब, हज़रत नदीम साहब तशरीफ़ फरमा है, मेरा हाल कभी ऐसा हो जाता रहता है। बस उन हालात को नहीं बयान करना चाहता, कोशिश करता हूँ दो चार लफ्ज़ पढ़कर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर ले, फिर हजरात के इंशाअल्लाह बयानात होंगे। तकरीबन 16 साल होने वाले हैं हमारे बिरादर मोहतरम शेखुल हदीस उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना शफीकुर रहमान साहब दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू की वफ़ात के बाद से ये मेरे हिस्से में आया है। तो हर साल कुछ न कुछ अल्लाह कहलवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 16वां या 17वां साल है। उम्मीद है अल्लाह ताला एक कुछ ऐसी नई बातें अता फरमा देंगे जो तुम्हारी उस किताब का हिस्सा बन जाएंगे। जो 16 साल से ख़त्म बुखारी हो रहा है, सनद की बातें, माने, लफ्ज़ी, लोगवी सारी माशाअल्लाह बहुत बातें होती रही हैं। आज भी सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है और बहुत बड़ी हिदायत है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने असलाफ के नज़रियात को समझने की तौफीक अता फरमाए। हदीस मुबारक के जो अल्फाज मुबारक हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इस हदीस का ततिम्मा और तकमिला है। तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, क्या परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने करम फरमाया है। सिर्फ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम में कमाल इल्म का समंदर बहा दिया गया है। सारे उलूम अपनी जगह पर मेरे रब की मारिफत का इल्म सबसे ज्यादा है, और सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम में मारिफत खुदाबंदी का इल्म मौजज़न है। और साथ ही सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िक्रुल्लाह भी है।
ये जिक्रुल्लाह भी है, इल्म भी है। इल्म कहते उसी को हैं जिससे अल्लाह की मारिफत नसीब हो, बाकी सब रफड़ा शफड़ा है, कुछ नहीं है। इल्म वही है जिससे अल्लाह जल्ल जलालहू की मारिफत नसीब हो। तो पूरे इल्म का इत्र और मग़ज़ सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम में मौजूद है। और जिक्रुल्लाह का भी कमाल, जितने अज़कार हैं उन सब का खुलासा भी इसके अंदर है। जिक्र के अक़साम हैं तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तस्बीह सुभान अल्लाह, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर। ताज़ीम और तकबीर मुतरादिफ समझे जाएंगे। तो ताज़ीम खुदाबंदी, तकबीर खुदाबंदी, अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के इसमें आज़म का विर्द, ये हमारे मशाइख हमें समझाया करते हैं। काश किसी को नसीब हो जाए। कहा करते थे अल्लाह वाले कि यार हमारे पास तो कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह का नाम है। आज जब बुखारी शरीफ खोली तो मुझे ज़हन में यही आया था, यार वो सच कहते हैं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिर्फ मेरे अल्लाह का नाम है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसी के हवाले से दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल अनपढ़ जाहिल तालिबुल इल्म हूं, गलती हो जाए तो माफ कर देना या मेरे लिए हिदायत की दुआ कर देना। खुदा करे कोई लफ्ज अपने अहलुल्लाह हजरात की दुआओं से दो चार लफ्ज मैं अर्ज कर सकूं। सारे मजमे को कहता हूं, दौरा हदीस के साथियों तुम्हें भी कहता हूं, मैं अपने आप को भी कहता हूं, इल्म और जिक्र को अलग अलग मत करो। इल्म और जिक्र में फासले मत करो। मैं 100 हलफ उठा सकता हूं, जो अल्लाह का जिक्र है वही इल्म है, जो इल्म है वही जिक्र इलाही है। मदारिस और खानकाहों को अलग अलग रास्ते दिए गए हैं कि शायद जिक्र करना कराना कोई और लाइन होती है, कुरान और हदीस का पढ़ना पढ़ाना कोई और लाइन होती है। अल्लाह की मारिफत ही सारे तसव्वुफ का खुलासा है। मकसद ही जिक्रुल्लाह की यही है कि अल्लाह जल्ल जलालहू की मारिफत नसीब हो जाए। ये इल्म है, ये इल्म है। इल्म और जिक्र लाजिम मलजूम है। आप कुरान मजीद को खोलें, ऐसा ऐसा मवाद मिलता है कि बंदा हैरान हो जाता है। अल्लाह हमें कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। इरशाद फरमाए फज़्कुरू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाहु अकबर, कमाल नहीं हो गई। अल्लाह फरमाते फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। लगता तो ऐसा था फसलू अहलल इल्म इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें किसी चीज का पता नहीं तो अहले इल्म से पूछो। लेकिन फरमाया फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जिक्र और इल्म लाजिम मलजूम है। यहां ये फरमा दिया है। दूसरी जगह पर फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जब क्या कोई कहने वाला कहेगा कि रब्बा खुशू खुजू तो पीरों में होता है, बुजुर्गों में होता है, मुतसव्विफीन में होता है, तो होता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल मशाइख अज़्ज़ाकिरीन अल्लाह। सारी चीजें बराबर हैं। फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जो शागिल भी ज़िक्रिल्लाह नहीं वो आलिम नहीं है। जो आलिम भी किताबिल्लाह सुन्नत रसूलिल्लाह नहीं है वो पीर नहीं है, वो शेख नहीं है।
मुझे इन दो लफ्जों ने हिला करके रख दिया है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। मैंने कहा क्या हुआ? नमाज शुरू कर रहे हैं तो पहले फरमाया पढ़ो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अल्लाह की मारिफत हासिल करो। वो जात सुभान है, सुभान पाक है, पाक है, हर ऐब से पाक है, हर माला या बगी चीज से पाक है। ये सुभान है, ये इल्म है रब को पहचानने का और रास्ता है अल्लाह का जिक्र करना। ये जो अलग अलग तफरीक कर दी गई है इसमें हमें नुकसान हो रहा है कि लेने अलग हो गई कि खानका कोई अलग चीज होती है, मदरसा कोई अलग चीज होती है, जिहाद कोई अलग चीज होती है, तबलीग कोई अलग चीज होती है। अस्तगफिरुल्लाह कैसे आता है? भला तजल्लुल कुरान है जी। वह दीन को टुकड़े टुकड़े मत करो। जो मार्फत इलाही सिखाता है वो मेरे लिए बड़ा मुहद्दिस है, बड़ा मुफस्सिर भी वही है। इसलिए मैं अपनी तारीख में अपने साथियों को बुलाता रहता हूं कि मैंने तारीख में यही देखा है कि पहले हर उस्ताद मारिफत इलाही को पाने वाला होता था। इसलिए हजरत मदनी के शागिर्दों को किसी और के मुरीद होने की जरूरत नहीं, वो हजरत मदनी का ही मुरीद होता है। क्या हुआ है? हजरत लाहौरी का शागिर्द हजरत लाहौरी का मुरीद हुआ जाता है। हाफिजुल हदीस अब्दुल्ला दरखास्ती का मुरीद शागिर्द उन्हीं का मुरीद हुआ जाता है। कह दो यार ये मौलवी हैं, हम तो किसी पीर को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या का क्या है, देखते चले जाओ, मैं तो हैरान हूं। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। उलमा तशरीफ फरमा है मुझ जैसा तालिबुल इल्म क्या जुर्रत कर सकता है? अल्लाह की जात है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़ल इल्म, इन्ना नहनु नज़्ज़लना वही। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र। यही कुरान मेरे रब का जिक्र है अलहम्द के वन्नास तक। ये जो इल्म है ये अल्लाह की मारिफत का नाम है। जिस इल्म में मेरे अल्लाह की पहचान नहीं, फेंक दो उसको, वो इल्म ही नहीं है। मेरे लफ्ज कुछ सख्त होते हैं, मैं हमेशा माफी मांगता रहता हूं। मुझे देखो ये बात ऐसी आ रही है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह में अल्लाह जल्ल जलालहू की मारिफत का दरिया बहा दिया गया है इस मुख्तसर वक्त में। या मैं जैसा तालिबुल इल्म से तो वो बात हो ही नहीं सकती। जाओ शाह अब्दुल अजीज से पूछो सुभान अल्लाह क्या चीज है, शाह वलीउल्लाह से पूछो, मुजद्दिद अल-फसानी से पूछो। जितनी कलिमात हैं अल्लाह की अजमत में, उन सब का ताज सुभान है। सिर्फ लफ्ज सुभान बहुत बड़ा है और आगे अल्लाह का इसमें आजम आया हुआ है। नूर अला नूर न कहो, कुछ और कह दो। कहते अब्दुल्ला दरखास्ती सबको कहता था सब कहो सुभान अल्लाह। लोग कहते थे ये तो दीवाना है, हजरत दरखास्ती तो मजजूब है, उसको तो किसी चीज का पता नहीं है। आज पता चलता है उस मर्द दुर्वैश के दिल के अंदर रब ने पता नहीं क्या डाला था। कोई ऐसी चीज नहीं। रब तो अपने महबूब के मेराज को बयान कर रहा है जिसके अंदर अल्लाह की तमाम तर कुदरतें शामिल है। फरमाया सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। मेरा हौसला खत्म हो जाता है। काश के हम कुरान पढ़ने वाले बने, हमें अल्लाह कुरान मजीद की तह में जाने की तौफीक अता फरमाए। हम उन लोगों की तरह जाहिर बीन न बने। अल्लाहु अकबर। सुभान
सुभान अल्लाह शिर्क से पाक, अल्लाह बीवी से पाक, अल्लाह औलाद से पाक, अल्लाह रोजी खाने से पाक, अल्लाह 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 अपनी मिसल से पाक। ले सका मिसली शय। तो मेरे रब के साथ तुम कैसे सूरत और मिसालें देकर मुझे समझाओगे? ले सका मिसली ही शय। कमाल फरमा दिया। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद फरमाया है। ये सब कुछ लफ्ज़ सुभान बता रहा है, लफ्ज़ सुभान बतला रहा है। मेरा रब पाक, मेरे रब की कोई तस्वीर नहीं खींच सकता, मेरे रब का कोई अक्स नहीं बना सकता। कह दो कि सिद्दीक अक्स हुस्न मुस्तफा अस्त, लेकिन नहीं कह सकते कि मोहम्मद अक्स खुदा अस्त। मेरा रब तफसील से पाक है। सुभान सुभान सुभान। जब सिफात का मजमुआ इसमें था तो अब समझ में आता है सुभान रहमान नहीं फरमाया, सुभान अल्लाह फरमाया है। जब अजमत इतनी आई कि दिल के दिमागों के दरीचे खुल गए हैं, कमाल फुतूहात हो गई हैं कि वाकई रब अब सारी सिफ्तें अलहदा अलहदा गिनता रहूं एक पारा हो जाएगा। फरमा दिया सुभान अल्लाह। लफ्ज अल्लाह फरमा दिया। छोटे बच्चे पढ़ते थे, हम भी पढ़ाते थे, पढ़ते थे कि हुवा अलमुन लिज़ातिल वाजिबिल वजूद अल मुस्तजमिल जमी सिफातिल कमाल। रब वो है जो जमी सिफात कमाल, तारी सिफात कमाल का जो भी तसव्वुर करते हो उसका कमाल मेरे रब में मौजूद है। इसलिए गालिबन शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का कौल है या मुजद्दिद अल-फिसानी का, वो कहते जब तुम कहते हो अल्लाह 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 तो रब के सिर्फ ये 99 नाम सिर्फ नहीं बल्कि जितने रब के इल्म में सारे नाम है उसका ये इदराक होता है और उसका जिक्र साथ होता है। अल्लाह अल्लाह। कहते रोटी की जरूरत है कि या मुगरी पढ़ो, हजरत रोजी का फायदा है फलान पढ़ो, सब बरहक है, आप मानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने लफ्ज अल्लाह को पहचाना है ना, वो कहते हैं बस अल्लाह 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 कहो, सब कुछ तुझे मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, रोजी भी मिलेगी, इल्म भी मिलेगा, तसव्वुर भी मिलेगा, तरीकत भी मिलेगी। मेरा वक्त ज्यादा मैं बिल्कुल मुनासिब नहीं समझ रहा। मैंने कहा मैं सिर्फ 2-4 लफ्ज कह दूं ताकि 16 साल वाली उस खत्म बुखारी के साथ मेरे ये तकरीबन पहली दफा अल्लाह ने दिल में डाले हैं तो वो आ रहे हैं। मेरे शेख तवज्जो डाल रहे हैं इसलिए कुछ लफ्ज आ रहे हैं। लफ्ज सुभान और लफ्ज अल्लाह और फिर बाबे हमदही। हजरत कमाल हो गया है। ऐसे लगता है पूरे कुरान मजीद का खुलासा और अतर इसमें आ गया है। इब्तिदा से देखो, इंतहा देखो, दरमियान में देखो, आगे में देखो। लफ्ज सुभान से बढ़कर तौहीद अल्लाह की मारिफत का कोई दर्स हो नहीं सकता। और जिस जात की अजमत को बयान किया जा रहा है, अगर दुनिया को उस जात का नाम ही ना बताया जा सके, मोमिन के दिल में उसका नाम तक ही ना हो तो डूब कर मर जाए। इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, इसके ईमान का भी कोई फायदा नहीं। लफ्ज अल्लाह हजरत फरमाते थे सब कहो अल्लाह, तुम भी कह दो सब कहो। आज नाने की बातें समझ में आती हैं, पता नहीं क्या था वो। कभी सुभान अल्लाह, कभी कहते सब कहो अल्लाह, दर्द दिल से कहो अल्लाह, तुम भी कह दो अल्लाह, ज़ौक़ से कहो अल्लाह। अब समझ आता है लफ्ज़ अल्लाह क्या है। जब मुझे समझ में आता है, एक साहबी है, मुकाबले में हजारों लोग हैं, कहने वाले कह रहे थे कि यार देख तो सही क्या हो रहा है। तलवार लेकर अल्लाह अकबर कहकर चला है
उलमा बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, कैसर और किसरा की सफ़ें सारी तोड़कर आखिर में पहुंच गया है। यह लफ्ज़ अल्लाह है। कहा जाता है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो सिपाही साहबा के सालार आज़म थे, उनकी टोपी में कुछ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक थे। कुछ कहते हैं क्या थे, विजदान ऐसा कहता है मेरे मोहम्मद करीम ने लफ्ज़ अल्लाह लिख कर दिया होगा खालिद बिन वलीद की टोपी पर, जिससे वो उड़ता जाता है। लफ्ज़ अल्लाह से कौन मुकाबला कर सकता है? कायनात एक तरफ हो जाए, लफ्ज़ अल्लाह जिसके पास है। इसलिए लोग कहते हैं हमें दूसरे रास्ते दिखाते हैं, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ भी अल्लाह अल्लाह से है। मैं उस मिजाज का नहीं हूं। सुनते रहो, हम सबके गुलाम हैं, विफाकुल मदारिस की भी गुलाम है, सबके गुलाम हैं, लेकिन हम किसी शख्सियत को मुहाफिज मदारिस नहीं समझते। मदरसे का मुहाफिज लफ्ज़ अल्लाह है। जिसमें मेरा बच्चा शुरू होता है बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद खुलती है अल्लाहु अकबर, इमाम मुसल्ले पे आता है तो अल्लाहु अकबर। ये वो मेरे रब का नाम है जिसने तुम्हें जिंदा रखा हुआ है, और क़यामत तक तुम इज्जत के साथ, ठाठ के साथ जिंदा रहोगे इंशाअल्लाह। मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी हूं ना, बड़ मार रहा हूं, शायद अल्लाह इसको पूरा कर दे। ये मजमा क्या है? मौलाना नसीम साहब फरमा रहे थे, मैंने कहा अल्लाह बताना चाहता है, वो इक़्तिदार वालों, तुम करोड़ों रुपए खर्च करो, हर एक के दर्द पर बसें खड़ा दो, इतना मजमा जमा करके दिखा दो जो मेरे मदनी करीम की हदीस सुनने के लिए आए हैं। फिर कहो अल्लाह अल्लाह, खुदा के लिए मुवहिद बनो। ना हमें हुकूमतों का डर है, ना हमें अपने पिराए सियासी लीडरों का कोई फिक्र है। निश्ता मोहब्बत करेंगे सबसे, एहतराम भी करेंगे सबका, लेकिन मुशरिक नहीं बनने देंगे। मेरा अल्लाह हिफाजत करता है। ये अल्लाह वाले बैठे हैं, सारी रात सजदे करते हैं। हज़रत नबी शाह साहब परेशान बैठे थे, उनकी घरवाली फौत हो गई, बच्चा भी फौत हो गया। मैं गया तो बहुत गमगीन थे, तो मैं हंस पड़ा। तो कहते हैं कमाल है यार, तू आयत हाजत करने तो खिलता भी नहीं। मैंने आखिर अल्लाह जल्ले जलालहू ने शायद, मुझे तो सबसे पहले अपनी औलाद याद होती है, अपना मदरसा याद होता है, अपनी मस्जिद याद होती है, मेरे अपने मसाइल इतने हैं। अल्लाह ने तेरी औलाद भी, बीवी भी ले लिया कि तू सिर्फ उम्मत के लिए रोता रहे। मैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह ने दिए हैं, हमें फख्र है। मैं जहाँ सफ़र पर जाता हूँ हजरत से इजाज़त लेकर जाता रहता हूँ, इनकी दुआओं से चलता रहता हूँ। तो बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी तो एक लफ्ज़, सिर्फ लफ्ज़ सुभान और लफ्ज़ अल्लाह, उसकी भी करोड़वां हिस्सा नहीं बयान कर सका। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो आइंदा साल, क्योंकि मैं सब पढ़ते जाओ, ये भी मैंने कहा हमारा मामूल है। हमारे यहाँ कुछ उलमा तशरीफ़ ले आए, बहुत बड़े शयूख़ हदीस थे। हमारे मक़सद मालूम में वो हदीस का दर्स देने के लिए आए। उन्होंने बड़ा अजीब गरीब बहुत अच्छा बयान किया। दर्स ख़त्म हो गया, मैं पहुंचा, मैंने लोगों से पूछा यार ख़त्म बुखारी शरीफ हो गया है, जाटा कह नहीं था। अल्लाह अकबर, वो तो हजरत से सुनते आ रहे थे कि ख़त्म बुखारी तो यही होता है कि हजरत भी पढ़ते थे, तलबा को भी पढ़ाते थे, तो तुम भी पढ़ो। और हजरत फरमाते थे मुझे उम्मीद है तुम इस मोहब्बत से पढ़ो, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें भी कुरान और हदीस के तलबा और उलमा में उठाएगा। इसलिए हम तो बाबा वही लकीर के फ़कीर हैं, नाना की नकल कर लेते हैं, अल्लाह इसी नकल को असल बना दे। सारे पढ़ो अन नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे पढ़ो सारे पढ़ो सारे पढ़ो। अब अबू हुरैरा कई दफ़ा बयान हो चुका है, अब मैं इस तरफ नहीं आ रहा। अन नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर पढ़ लो कलिमतान। फरमाया दो कलामें हैं, शान वाली दो कलामें हैं, हबीबतान इलर रहमान, जो मेरे रब्बे रहमान को बहुत बड़ी प्यारी हैं। ये बातें हो चुकी हैं, रहमान की सिफत लाई गई है, सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह को तो बड़ी महबूब और प्यारी हैं। करीम की करीमी तो देखो कि फिर ये मोहब्बत के अंदाज तो देखो ना। सखी जब महबूब को देता है तो उसकी कोई गिनती नहीं हुआ करती, उसकी कोई हद नहीं हुआ करती। अल्लाहु अकबर। और फिर कोई मुश्किल भी नहीं लगती। मैं किसी और को दूं 100 रुपया, मुश्किल लगता है यार, 100 रुपया बस वो गाटे पे गया डेरी पे। महबूब को कोई लाख रुपया भी दे दे तो कुछ पता ही नहीं चलता है, आसान होता है। तो फरमाया खफीफतान अलल लिसान, ये मोहब्बत का एक नजारा है, जबान पर बिल्कुल हल्की हैं। कई दफा अर्ज कर चुका हूं, सारे लफ्जों में लुकनत है। सारी दुनिया की 300 कुछ जबानें हैं, सबको जमा कर लो, इन लफ्जों के पढ़ने में किसी को लुकनत नहीं होगी। कोई सुभान अल्लाह ऐसा नहीं पड़ेगा, अल्लाहु अकबर है। तो फरमाया सखी खफीफतान अलल लिसान, खफीफतान अलल लिसान, सेकंड नहीं लगता, सेकंड का सैकड़वां हिस्सा नहीं लगता है। खफीफतान अलल लिसान, सुभान अल्लाह। ये तो फिर शायद वजन घटा रहे हो, बात का हुजुम खत्म हो जाएगा। फिर मैं नहीं, अपनी सोच से न सोचो, मेरे रब की कुदरत से सोचो। सकीलतान फिल मीज़ान, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाहु अकबर। कभी ऐसा भी होता है कि 1 तोला जो है वो 50 मन बन जाए या मिलियन बन जाए? ऐसा होता है? नहीं होता, लेकिन होता है। जब अल्लाह चाहे तो होता है। बस रब को हर चीज पर कादिर मानो। नफे नुकसान का मालिक भी अल्लाह है, मदरसों की हिफाजत का मालिक भी अल्लाह है। जो पहले हुआ, जो आगे होने वाली हैं परेशानियां, सबसे मेरा अल्लाह कुरान और हदीस के मराकज़ को महफूज फरमाएगा। जहां ये पढ़ा जाता है, जहां ये नजरिया दिया जाता है, खुदा की कसम तो बाज कर बम मार दो, पूरे मजमे का एक आदमी ना रहे। नए साल में जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद फिर भरा हुआ होगा तलबा से। तुम्हें पता ही नहीं कि क्या होता है, दुनिया क्या समझती है। अस्तगफिरुल्लाह, हम पागल हैं, समझ लो, कुछ भी कह दो। अल्लाहु अकबर। सकीलतान फिल मीज़ान, कैसे कैसे वह के मुर्दा कैसे सुन दे, हुजूर किवें सुन दे। मैं सबके जखेंदा रहा कुछ 100 खल्ला मारो, दिमाग ठीक थी वैसे से। उल्लू, हाँ तो रब की कुदरत से मुकाबला करता है। मेरा आज कैसे वतः करे, हुजूर कैसे सुनते हैं, हुजूर कैसे जवाब देते हैं। तू क्या लगती भरोड़िया, तेरे को तहसीरुल मंतक नहीं हमदी। और फिर ये उल्लू नानोतवी तक पहुंचता है। ए कहां कहां जालता है। मैं तो अपने नानोतवी क्या दरखास्ती के मुकाबले में किसी को नाम का बर्दाश्त नहीं करता। पता है सबको। मैंने कहा जो मेरे बुजुर्गों के नाम में गड़बड़ करे जूते ला दिया करो। उस बेगैरत को मैं मिलता ही नहीं हूँ। मुझे आकर के फिलाना हजरत दरखास्ती को गालियां दे रहा था, फिलाना ताल्लुल शबगारी को यूं कह रहा था, तू मुकाला में लड़ाई रे। जिंदा आया क्यों है, वो क्यों है? इसलिए कि अल्लाह के नाम को उन्होंने बुलंद किया था, कमाल कर दी है। सकीलतान फिल मीज़ान,
पढ़ लो, अल्लाह यही नसीब फरमा दे। मैं तालिबुल इल्म हूँ, मशाइख से, बुजुर्गों से, बड़े बड़े उलमा से मजीद इसकी तहकीक पूछते रहो। जिंदा रहा तो मैं भी कुछ अर्ज करता रहूँगा। सारे जोर से पढ़ो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। खफीफ चीज़ सकील है। पता नहीं क्या ज़हन जो चलता पे करने से वक्त पूरा है, मेरे को शर्म आती पी। क्या कह रहा था मैंने कहा खफीफ चीज़ सकील हो जाती है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम मीज़ान को भर दे। मैंने कहा उलट भी कह दो, सकील भी खफीफ हो जाती है। सकील भी 100 दफा पढ़ लो, 3 मिनट लगेंगे, तेरी पूरे 24 घंटे के सारे गुनाह तहलील हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। अब इस पर हैरान हो रहे थे ना कि खफीफ सकील हो रही है। मैंने कहा यहां सकील भी खफीफ हो रही है। असल के अंदर तो अल्लाह अपनी कुदरत दिखाना चाहता है। वो पागलो, मैंने तुम्हें आंख दी है, तुम्हें अकल दिया है, दिमाग दिया है, जमीनें दी हैं, औलाद दी हैं, फिर भी तुम्हें हया नहीं आता। तुम मुझ रब को नहीं पहचानते हो, पहचानते नहीं हो। हया करो, रब के बनो, रब के बनो, रब को पहचानो। अल्लाह का जिक्र कुरान मजीद की तिलावत जिक्रुल्लाह है, हदीस रसूलुल्लाह भी जिक्रुल्लाह है। कोई लफ्ज अल्लाह से बगैर कोई हदीस तुम्हें मिली है? एक हदीस बता दो जिसमें अल्लाह का नाम ना आया हो। इतना तो कहोगे ना, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर। बहरहाल अल्लाह ताला करम फरमाए। 2 लफ्ज़ हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं अपने शेख से भी अर्ज़ करूँगा, हज़रत कफ़ील शाह साहब, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। बस हमारी थोड़ी सी यही है कि हम सुबह तक चलते हैं, ये सारा मजमा इंशाअल्लाह सुबह तक ऐसे बैठा रहता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वक्त ज़ौफ़ में, उम्र में हमारे मुर्शिद हज़रत शेख हज़रत खाकवानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया सबसे ज़्यादा बुढ़ापे में, बीमारी में हैं। इसलिए दिस्तारबंदी का अमल करना है पहले जी। ये वाला भज बंदन ना बोला, इन्हें दे माँ प्यू भज दें। अगर बैठे रहें तो चंगा है। लोग 2 बजे 4 बजे से करें ख़त्म बुखारी। मेरे ज़हन च कम अज़ कम हज़रत दम बयान थी वञे, आधा घंटा बयान थी से इंशाअल्लाह अज़ीज़। भला तो इन्हें दिसार बंदियाँ थी सन, हज़रत कफ़ील शाह साहब का बयान थी से भला इंशाअल्लाह। पता नहीं कितने सारे बैठा 5 मिनट दी